Yes, it is started. Only 29 students are there. After that, they claim they are not able to understand. Okay. Yeah, see. So the next topic is the list. So just recall from the last class, in the last class, we have discussed this. We have discussed the conversion. We have discussed some help regarding the import, like we have imported math. Then हमने check किया था कि what functions are available in math, help about the math. We have also created our package where we have added some where we have added some help. ठीक है, like some instruction for the third person or for the second person. ठीक है, याद है ना आपको? हमने प्रोग्राम किया था constant dot py, and that constant dot py we have written some instruction for the some other person, those who want to access our code. ठीक है, so from in the three inverted comma, I will show you here, just a minute, you see. Yeah, this one, and from the lab 6 own package, yeah, this one. Yeah, then of course we have added this three inverted comma in started three inverted comma close, and inside three inverted comma what you will write, it will be displayed as a help for another person. ठीक है, I think you might remember this. ठीक है, after that we have discussed operators and their order of precedence. ठीक है, the highest order, then this negation, then multiplication, division, addition, subtraction, comparison, not, and or assignment. So last class we have discussed this. ठीक है, ठीक है, these are six rules here for precedence order. After that I told you we will discuss these things, literal collections. Clear, literal collections. ठीक है, so what is collections? I already discussed in the previous class. Suppose we want to use a large number of numbers, ठीक है, या large number of strings, or collection of number of strings. So instead of assigning them in different variables like a equals to 10, b equals to 20, c equals to 30, d equals to 35. So if we want to use 100 variables, so we need to write them 100 times. ठीक है, so instead of that way, there is a concept that is known as collections, literal collections. ठीक है, so we will use only one variable, and that one variable will have a collection of different elements. ठीक है, so there are four different literal collection. ठीक है, कितने हैं? There are four. ठीक है, so first one is list, second one is tuple, third one is dictionary, DICT short, and fourth one is set. ठीक है, so today we will learn list and tuples. Clear? Okay. Do you understand what is the what is the purpose of this literal collection? Any, please answer. Anyone? What is the purpose of literal collection? Please answer. I need to ask one by one. Abhay Shukla, what is literal collection? सर मतलब एक बार मतलब बार बार हम लोग को ना लिखना पड़े, वो लिटरल्स जो होते हैं, जैसे इंट है तो उसे बार बार ना लिखना पड़े, तो उसे उसके लिए मतलब यूज हाँ, करते हैं कि एक ही ये, बार मतलब लिखना पड़े. हाँ, ठीक, गुड. अद्वैत सालान. अद्वैत. Yes, sir. Yeah. So what is literal collection? And how many literal collections we have in Python? Please answer. No. I am noting down the name of the student, those who are not responding actually. Yes, sir. Yeah. So next one is Archita Dubey. Archita Dubey. Because Sir, after, can I?
Sir, can I? Yeah, yes, you can. Sir, basically, literals are the notation which represents the fixed value of a particular code, sir. Okay. And literal And collections. Yes, yes. sir, there are 5 types of literals, sir. Okay. Go ahead. Sir, string literal, numeric literal, Boolean literal collection, and special literal, sir. Yes, okay. Nee, I'm talking, these are the literals. I'm talking about literal collection. Yes, Boolean, numeric, and a string and none. These are the literals. I'm talking about literal collections. Sir, there are different types of literal collections, sir. List, couple, dictionary, and set. Sir. Okay, yeah. Okay, next Archita Dobe. Because after few days you have a exam actually. ठीक है. And मैं नहीं चाहता हूँ कि you will be behind to BTech. ठीक है. So both must have same level. Archita Dobe. Okay. Dibyansi. Okay, no problem. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Archita Dubey or Dibyansi, who is talking? Divyanshi. Okay. Yes, see. So 4 literal collections. This is just an example and we are discussing them in detail. See, first one is list. Okay. So for the list, we have to use this bracket, square bracket. For that tuple, we need to use this bracket. For the dictionary, we need to use this bracket, and for the set also we need to use this bracket, but there is a difference here and I will discuss this. Okay. So I'm starting my terminal, or before that I can go here. Yeah, see. So this is visible list. This is Yes, visible. yes, sir. Yeah. See. So what is the definition of list? A list is a sequence of data values called items for or elements. Okay. List is a collection of data items, elements. An item can be of any type. It can be of any type. It may be integer, it may be float, it may be a string. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Some examples you can have like a list of roll numbers, list of names, list of to-do list, shopping list. You can have anything here. Guest list. ठीक है. One more thing is there. It is not necessary always you have the same type of element like integer or like float. You can have different types. If you study some other language like C programming, in C programming they have the concept of array, but there is a limitation. In the array they can have only a single data type. Either it is a collection of integer, either it is a collection of string, either it is a collection of characters, collection of floats. ठीक है. But यहाँ पे एक advantage है. You can have, see, first example here. First, what is the how to write them? For the list, we need to start from this bracket. This is opening bracket. I'm highlighting, and this is closing bracket. And each elements are separated by comma. Each elements are separated by comma. Clear? So this is just an example. Marks. ठीक है. 95, 85, 78, 19, 20. So instead of writing marks 1, marks 2, marks 3, marks 4, marks 5, I am just having one variable that is known as marks. Or in this there are 5 elements. Similarly, for names we are having Rohit, Akash, Harsh, Anjali, Divya. 5 students. ठीक है. So this is a collection of same type of elements. This is an integer, this is a string, but we can have different type of elements also. Like, see, first element is a string, second element is a numeric, third element is a string, fourth element is a numeric. So we can have different types of element in list. So this is the advantage here. Clear? And one more thing is there, ये note कर लेना आप ये चीज. ठीक है. A list is changeable. A list is changeable. ठीक है. So that is, it is called mutable. It is called mutable.
That means at any point in the lifetime, elements can be inserted, removed, or replaced. Okay, so you can insert you can replace, you can play around with them. Okay, so I am starting my terminal here. सर एग्जांपल्स एक बार ही समझा देना फिर से. हाँ, मैं एग्जाम्पल वहाँ से समझा रहा हूँ, वो अपने टर्मिनल से या जुपिटर नोटबुक से. ठीक है, प्रैक्टिकल. सो JUP/T जुपिटर नोटबुक. Okay, Bisal Misra is in the class? No. Actually, I received a message from college that Bisal Misra is not added in the class. So I sent him a invitation, but I think he's not joining. Okay, so I am explaining with the example here. I have already created so that we can utilize our time actually. See, this is we have already learned this. Yeah, so we are starting from here. See, list. See, just an example. Suppose you have a marks here, marks. So we can write like this. Suppose 95, 85, 24, 86, 98. So this is just a list here. Okay. If you want to see marks, you can see. See, so this is a list here. If you want to check the type, TYP type, MARKS marks. See, this is a type is list here. How many elements? 5 elements. ठीक है, कैसे चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? देयर इज अ फंक्शन दैट इज नोन एज len alien. हाँ, एक और एडवांटेज मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, सपोज आपने इसको रन कर लिया. ठीक है, एक नया सेल स्टार्ट करते हैं हम जुपिटर नोटबुक, और आई थिंक इन कॉलैब यू कैन चेक दिस. सो मार्क्स इज अ लिस्ट. ठीक है, आई हैव जस्ट रिटन हियर मार्क्स. ठीक है, and I just and dot. ठीक है, dot, and just wait. Okay, just question mark here. So see, it will tell you it is a list. ठीक है, length is 5, built in mutable sequence. ठीक है, एंड अब इसमें कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक alien. Suppose you want to check length, marks. So I have just entered here length, and you can see the length is 5. ठीक है, so अगर सपोज मैं आपको एक प्रोग्राम दूं, you have a list and you need to find the number of elements in a list. What you will do? What you will do, friends? len का यूज कर. Alien. ठीक है, suppose now I have a constraint कि you cannot use a inbuilt function alien len. Then you cannot use inbuilt function len. हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, हमने फॉर लूप पढ़ा है आई थिंक. सर मैं बताऊं, हाँ हाँ बताइए. एल को करना है ना? हाँ, हमें लेंथ फाइंड करनी है. यस, किसी भी स्ट्रिंग की, मैं सॉरी किसी भी लिस्ट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फॉर आई इन एल. Yeah, good. So yesterday we have in the last class we have learned for loop. ठीक है, for I in marks marks. ठीक है, oh sorry, ठीक है, for I in marks. Now next is suppose length is equals to 0. ठीक है, now what I will do? Length is equal to +1. Yeah, length, length is equals to length plus 1. ठीक है, anything else? Anything else? Now check. Length is not leng. Oh, sorry, spelling mistake. Length.
Yeah, see, 5. So this is a inbuilt function, and we can use our own logic to find the length of a list. Is it fine, friends? Yes, sir. ठीक है. Now for other students, suppose One doubt, you. one doubt. हाँ, पूछिए. We have to write #1 list in Python. We have to write this thing. Sorry. We have to write list in Python #wala. Hashtag. List in Python. सर वो कमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कमेंट्स की बात कर रहे हैं. अरे ये दिस इज जस्ट अ कमेंट. आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं ना क्लास में. ये दिस इज जस्ट अ कमेंट्स है यार. दिस इज जस्ट अ कमेंट. इसको आप हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू सी, कमेंट मतलब कि सपोज आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 15 days यू स्टार्टेड रीडिंग दिस एंड यू फॉरगेट. तो जस्ट हमने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि दिस इज जस्ट अ लिस्ट. ठीक है. तो द स्ट्रिंग दैट इज स्टार्टेड आफ्टर हैज इज कंसिडर एज अ कमेंट. ठीक है. कमेंट मीन्स पाइथन विल नॉट रीड दैट थिंग्स. ठीक है. इट इज जस्ट फॉर अस, इट इज जस्ट फॉर यू. ठीक है, समझ में आया? या. ठीक है. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. इसका गुड प्रैक्टिस क्यों है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं अपना कोड दिखाता हूँ. बहुत बड़ा कोड है, फिर आपको रियलाइज होगा हाँ यस इट इज रिक्वायर्ड यार एक्चुअली. सी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ओ नो. ठीक है, मैंने सपोज आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है. सी, हमने देखा यहाँ पे कई सारे ये लिखे हैं. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज एंडिंग फ्रॉम हियर. ठीक है. कई सारी ये चीज़ें लिखी हैं, ये देखिए आप. तो दिस इज जस्ट अ कमेंट. जैसे सपोज मैंने आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस माय कोड आफ्टर 6 months. तो मैं भूल जाऊंगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, ये मैंने क्यों लिखा था. सो जस्ट मैंने कमेंट ऐड कर दिया कि द पर्पस ऑफ दिस इज दिस. ठीक है. सो ये जो लैंग्वेज है जो C++, इसमें कमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइन, दिस. ठीक है, बैकस्लैश. ठीक है. सो इसी तरह से पाइथन में क्या होता है, हैज होता है, हैज. ठीक है. आफ्टर हैज ऑल द थिंग्स विल कंसिडर एज अ कमेंट्स. ठीक है. अब देखिए मैंने इतने सारे कमेंट्स लिखे हैं. ठीक है. तो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद इसको रीड करूंगा, देन आई कैन अंडरस्टैंड ओके दिस इज द पर्पस ऑफ दिस. देखिए इतने सारे कमेंट्स हैं. तो ये गुड प्रैक्टिस है. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर इफ यू आर राइटिंग अ लॉन्ग प्रोग्राम. ठीक है. देखिए, सो जस्ट एन एग्जाम्पल यार. ठीक है. सो या यहाँ पे थे. ठीक है. तो ये लिस्ट समझ में आया. नाउ इफ यू वांट टू चेक इंडिविजुअल एलिमेंट्स. ठीक है. हाउ मेनी एलिमेंट, सी मार्क्स. ठीक है, मार्क्स. नाउ द एलिमेंट इंडेक्सिंग of elements is started from 0. So suppose you will write now, if you want to check first element only, first element, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट स्टार्ट 0 ब्रैकेट क्लोज. so it will give you what, it will give you the first element. It will give you first element. You can see this is marks 95, 85, 23, 86, 90. So this is the first element, this is second, third, fourth, fifth. But indexing is started from 0. ठीक है. So अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, then you have to write this marks square bracket open square bracket close, and in the square bracket you have to write index. ठीक है. फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 0 से स्टार्ट, सेकेंड एलिमेंट मीन्स 1. ठीक है. So if you will write here this marks 2, so it will give you what, मैं एक पूरा प्रिंट भी करा देते हैं. प्रिंट marks is check कीजिए. ठीक है. see this is the whole list here, and this is the first element, and this is the third element. ठीक है. 2 means third element. so this is clear friend, this is clear. Yes, sir. ठीक है. सो सपोज मैं आपको एक प्रोग्राम दूं टू एक्सेस ईच मार्क्स,
ठीक है। और सपोज इसमें एक मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, सपोज आपके जो मार्क्स थे वो सेम थे, नाउ मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, नेम्स इज इक्वल्स टू रोहित AKA आकाश हर्ष एंड एनी नेम और कोई नेम तुषार। आरव। ओके ठीक है। एंड मार्क्स आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, मार्क्स भी ऑलरेडी है। नाउ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि जस्ट प्रिंट नेम एंड मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है। सो मार्क्स देयर आर 5 मार्क्स, 5 स्टूडेंट के मार्क्स एंड उनके नेम्स। क्या करेंगे आप, फॉर आई इन, क्या करेंगे, और हम ये भी कर सकते हैं, देखिए आप के फॉर आई इन, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ, तो हम ये कर सकते हैं लिस्ट, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सपोज हमारे पास एक 5 स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, योर गोल इज टू प्रिंट द नेम एंड मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है, 1 by 1, ठीक है। प्रिंट मार्क्स एंड, जैसे आपके देखो ये मार्क्स ये थे ना आपके, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, 95 85, सॉरी ये इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रैकेट, ठीक है, 9 ठीक है, 95 85 और 76 80 सर आप नंबर 74। को स्ट्रिंग्स में डालते हो सर, आप नंबर को वैसे भी लिख सकते हो ना। हाँ मैं स्ट्रिंग गलती से हो गया था वो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है, आपका गोल है यू नीड टू प्रिंट द नेम एंड मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन, क्या करेंगे फिर हम इसके बाद, कब तक हमको फॉर लूप चलाना है, प्लीज आंसर, हमें कब तक फॉर लूप चलाना है, हमें 5 टाइम्स लूप चलाना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सर अगर फॉर देखो आई इन नेम्स नहीं तो फॉर आई इन मार्क्स भी कर सकते हैं। हाँ हम फॉर आई मार्क्स भी कर सकते हैं, बट जो आई का इंडेक्स है, आपको जैसे देखो, अगर आपको क्या करना है, अगर आप ये लिखेंगे प्रिंट, देखो लॉजिक देखो, अगर आप मार्क्स 0 लिखेंगे तब वो 0 स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट होगा, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करोगे, फॉर आई, आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे I0 आ जाए, I1 आए, देन I2, देन I3, तो आप फॉर लूप में ये लिख सकें। मैं अभी फॉर लूप इनकम्प्लीट है, आई विल राइट दिस प्रिंट, मैं लिखूंगा नेम इज, यहाँ पे कर दूंगा नेम्स आई, ठीक है, ये जस्ट अ स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूंगा मार्क्स इज, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा MARKS मार्क्स आई। इसका मतलब क्या होगा, अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट मार्क्स आ जाएगा, देन आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर सेकंड नेम आ जाएगा, देन सेकंड मार्क्स, देन आई की वैल्यू 2, देन यू हैव थर्ड नेम एंड थर्ड मार्क्स। एम आई राइट, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो अब आई की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कैसे करें, हमने लास्ट क्लास के लास्ट लैब में पढ़ा था, फॉर लूप में मैंने बताया था आपको, जस्ट रिकॉल दैट, या मैं फिर से यहाँ पे एक टाइप स्टार्ट करूँ, जस्ट रिकॉल, याद है, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 0,5, याद आया कुछ, प्रिंट आई, क्या आया आउटपुट, 0 1 2 3 4 तो आया 0 कि नहीं। 1 2 3 4। हाँ तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज क्या 0,5, लेकिन हमें कैसे पता कि इसमें 5 ही एलिमेंट्स हैं, हमें कैसे पता इसमें 5 ही एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5 हटा देंगे तो लास्ट में आ जाएगा। हाँ हम क्या करेंगे, LENGT से लेंथ फाइंड कर लेंगे, पहले से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे लेंथ लिख देंगे, ठीक है। कैन वी डू दिस, अगर आपको आई की वैल्यू प्रिंट करना हो तो मैं ये भी कर सकते हैं,
लिखेंगे ओके, यहाँ पे लिखेंगे आई स्टूडेंट। कैन वी डू दिस? ये i+1 कर देते हैं क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। कर सकते हैं कि नहीं? प्लीज आंसर। अगर हम वहाँ पे लेंथ की जगह अगर कुछ नहीं डालेंगे सर तो एंड लूप तो एंड में खत्म होगा ना। नहीं तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। वो फॉर का सिंटेक्स क्या होगा? फॉर आई इन क्या? आप क्या यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं आप? व्हाट यू वांट टू राइट हेयर? तो 0 to ब्लैंक्स मतलब छोड़ देंगे आगे, इसमें लिखेंगे। तो 0 to कुछ लेंथ नहीं। किया है आपने, 0 फॉर आई इन रेंज 0 to लेंथ किया, तो मतलब वो टोटल नेम्स का लेंथ लेगा विच इज 1 2 हाँ 3 4 5, तो 0 to 5 ले 5 लेगा, करेगा वो। 5 ले लेगा, बट जो ये रेंज होता है वो 5-1 तक आएगा, 0 से 5-1 हाँ यानी कि रेंज तो 4। वो क्योंकि 0 भी काउंट करते हैं, तो 0 1 2 3 4 आएगा। हाँ हाँ यस, ठीक है। आप कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो देखो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये एरर आएगी ना, इनवैलिड है। नहीं सर, रेंज लिखो फिर ब्रैकेट में 0 कॉमा फिर सर आगे छोड़ दो एंड वाला। क्या ये छोड़ दें? ये कह रहे हैं आप? यस सर। कॉमा भी हटा दें? कॉमा हटा दें? नो सर कॉमा नहीं। ये तो रॉन्ग सिंटैक्स है ना, कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है। देखिए आप, सर यहाँ पे स्टार्टिंग की कंडीशन दे दी है लेकिन एंड की कंडीशन नहीं दी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो एंड की कंडीशन तो है ही नहीं। ठीक है, ओके। अरे क्या कर दिया मैंने? ठीक है, तो अब देखिए आप, या देखिए, तो देखिए मैंने क्या प्रिंट कराया पहले, आई इन रेंज 0 to लेंथ। तो लेंथ कितना है पहले हमारा? अगर आपको लेंथ भी प्रिंट कराना हो तो आप लेंथ भी प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए लेंथ इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए LENGTH। ठीक है, देखिए अब आप, लेंथ हमारी 5 है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 0 से लेके 4 तक आएगा ये रेंज, दिस विल बी 0 to 4। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे i+1 कर दिया, i की वैल्यू 0 है तो 0+1 कर दिया, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट कराया है नेम इज नेम ऑफ आई। ठीक है, तो i की वैल्यू 0 है तो नेम 0 में फर्स्ट नेम आएगा, देन मार्क्स 0 में फर्स्ट मार्क्स आएगा, देन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इज इट फाइन और यू नीड मोर डिस्कशन? ठीक है ना ये? सर जैसे सपोज हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ, अब जो लेंथ है हाँ उसकी वैल्यू तो 5 है ना, तो बेसिकली ये हाँ फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा 5 हुआ, तो ये एक हाँ, कम, इसमें एक कम क्यों नहीं चला? बिकॉज ऑफ लेंथ। नहीं नहीं, एक कम तो चला, ये 4 देखो, 0 1 2 3 4 ही तो चला है, मैं तो यहाँ पे +1 किया ना। अरे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लो देखिए, एक कम तो चला, ये देखो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, देखो ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। नहीं सर, दिस नाम इज, तो सारे ही आए हैं ना, रोहित, आकाश, अरे हर्ष, भैया दिव्या। इसमें, अरे देखिए देखिए कितने नाम है इसमें, ये क्या हुआ? 5। दिस इज नेम्स 0, दिस इज नेम्स 1, दिस इज नेम्स 2, दिस इज नेम्स 3 एंड दिस इज नेम्स 4। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 5 नेम होंगे तो वो 4 पर एंड होगा ना, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। ये पता कंफ्यूजन यस। क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। 1 से स्टार्ट होगी लेकिन तो 1 2 3 4 5, बट 0 से स्टार्ट हो रही है तो 5 के लिए क्या होगा? 0 से लेके 4 तक। गॉट इट? हाँ सर, समझ गई। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको बीच में से कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो, जैसे आपको 5th एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में? 4। 4। ठीक है, अब एक आध दो चीजें और देख लो अगर आप। ठीक है, मैं मैक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ, -1, इसका मतलब क्या होगा? पीछे से पहला। लास्ट से फर्स्ट। लास्ट, लास्ट वाला दे देगा ये।
ठीक है, तो इसी तरह से -2 अगर आप करेंगे तो बस ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, सो यू मस्ट प्रिपेयर। क्लियर? Okay. ठीक है, तो ये जो मैं ये यहाँ पे था ये पूरा हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी, अब देखो कुछ यार इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, और एक्चुअली इनबिल्ट फंक्शंस में बता रहा था, मैं गूगल कॉलम में देखता हूँ, कॉलम में आई थिंक वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता है। जस्ट अ मिनट, सी ओके, यहाँ बहुत सही, बहुत अच्छी सीटी बजा लेते हैं आप। ओह सॉरी सर, मैं अपने डॉग को बुला रहा था। ठीक है, Sorry, एल मेरा mic डॉट, on था, मुझे पता नहीं। नो 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 प्रॉब्लम, एल डॉट अपेंड में एक्चुअली वो डिस्प्ले हो जाता है, मैं वो देख रहा था यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, तो इनबिल्ट फंक्शंस यू कैन नॉट रिमेंबर, मैं भी रिमेंबर नहीं कर सकता हूँ सारे, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होते हैं। मैं वही चेक कर रहा था कि वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आई एम जस्ट चेकिंग कैसे चेक करते हैं। कॉलम में जस्ट वी नीड टू राइट, या सी ऐसे कर सकते हैं, dir ब्रैकेट में लिस्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैंने एक और लिस्ट बनाई थी एल, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, LEN, एल क्या तो लेंथ आ जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। नाउ dir ऑफ एल, तो ये क्या करेंगे, इसमें अंदर जो भी है देखो क्या क्या है, रिवर्स, सॉर्ट, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड, काउंट, कॉपी, क्लियर, अपेंड। सो दीज आर द फंक्शंस अवेलेबल, मतलब आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ भी यहाँ पे था ये। ठीक है, तो दीज यू कैन यूज बाय यूजिंग डॉट। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो अपेंड, ठीक है, आपको ये एल याद है ना, ये दिस इज एल हेयर, एल इज, या मार्क्स से स्टार्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, MERKS मार्क्स था, मार्क्स में हाउ मेनी मार्क्स वी हैव मार्क्स 4। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग अपेंड, APPEND अपेंड। ठीक है, एंड मैं एक मार्क्स एंटर कर देता हूँ 86। ठीक है, एंड देन प्रिंट मार्क्स, तो देखो लास्ट में 86 ऐड हो गया, लास्ट में 86 क्या हो गया, add. So there is a function that is known as append. So you can append anything at the last of the list. ठीक है, सिमिलरली आपके पास नेम्स थे, names dot append you can use, and you can append here any name. मैं कोई नाम भूल गया हूँ तो अरसू लिख देते हैं हम। ठीक है, and then okay sorry, ठीक, सो यू कैन चेक। ठीक है, तो एक नाम अरसू ऐड हो गया। एंड एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लिस्ट में यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, L2 इज इक्वल्स टू, कैपिटल L लिख देते हैं, वी कैन हैव दिस आल्सो 1 कॉमा रोहित कॉमा 2 कॉमा अक्स। ठीक है, सो यू कैन हैव दिस। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, L2 डॉट अपेंड करता हूँ, L2 डॉट अपेंड, फिर मैं इसमें एक 3 इंसर्ट कर देता हूँ, देन मैं करता हूँ L2 डॉट अपेंड, फिर मैं इसमें कोई एक नेम इंसर्ट कर देता हूँ, कोई भी नाम बताइए आप, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन प्रिंट। ओके, देखिए इनिशियली इसमें क्या था, 1 रोहित 2 अक्स। ठीक है, नाउ हमने एक और इंसर्ट किया इसमें 3, तो 3 कहाँ पर इंसर्ट होगा, इसके एंड में। फिर हमने इंसर्ट किया पवन, तो पवन किसके एंड में होगा, 3 के बाद। दिख रहा है ना आपको ये, यस और नो? ठीक है ना? ठीक है, सो दिस इज सम फंक्शंस अवेलेबल हेयर। ठीक है, यू कैन यूज पॉप, तो देखो पॉप का यूज बताते हैं हम, जैसे कि सपोज हमने एक लिस्ट है हमारे पास, ये देखिए रेंज 10, रेंज 10 क्या देगा आपको, इट विल गिव 0 to 9, इट विल गिव 0 to 9। ठीक है, हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने उसके आगे लिख दिया लिस्ट, सो एक लिस्ट बन जाएगी, एंड इन दैट लिस्ट यू हैव एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 9। ये समझ में आ रहा है ना आपको, ये वाला? सी
either you can use this a equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. You can use this, yes or no? जहां तक भी आपको यूज करना है, मान लो 7, 8, 9, ठीक है। ऑल्टरनेटली 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 आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो रेंज क्या देगा आपको, रेंज 0, 10 क्या देगा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड एट 9, तो 0 to 9। इसको हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं, लिस्ट बना दिया और इसको हमने ए में असाइन कर दिया। तो इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्टकट तरीका है, सपोज यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे मैथमेटिक्स, जहाँ से भी स्टार्ट होते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, बस उस नेचुरल नंबर को लिखेंगे, ठीक है, एंड देन हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, 50 तक, तो देन वी विल राइट 51। ओके फाइन है ना। अगर सपोज हमें यहाँ पे 2 से कराना होता, सपोज वी हैव टू वांट इट फ्रॉम 2, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं बस। सो दिस इज अ शॉर्टकट, मतलब कि यू नो नीड टू राइट होल लिस्ट, जस्ट रेंज का फंक्शन यूज कीजिए, रेंज, ठीक है। रेंज में पैरामीटर पास कीजिए, स्टार्ट एंड स्टॉप -1। जैसे आपको स्टॉप 50 पे चाहिए तो 51, सॉरी स्टॉप +1, 50 चाहिए तो 50 +1। सो दिस इज एन अगेन, ठीक है। सो दिस अब पॉप करना हो, पॉप में क्या होता है, सी सपोज एक लिस्ट है जिसमें 0 to 9 एलिमेंट, सपोज यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट। अगर आपको लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, देन वी विल राइट पॉप डॉट पॉप, ठीक है। तो ये देखिए पॉप की हमने, देखो तो लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। अब आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आपके एक एलिमेंट कम आएगा। सी इनिशियली ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हमने एक एलिमेंट पॉप कर दिया, ठीक है। पॉप मीन्स डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट। ये डेटा स्ट्रक्चर में एक टॉपिक होता है पुश एंड पॉप, ठीक है। पॉप मीन्स डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट एंड पुश मीन्स होता है इंसर्टिंग एन एलिमेंट, ठीक है। तो हमने लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो हमारा ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर हमें इंसर्ट करना है तो वी विल यूज INSERT, इंसर्ट फंक्शन। देखिए ये इंसर्ट फंक्शन है हमारा, ठीक है। हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट कहाँ पे करना है, सपोज हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, और क्या इंसर्ट करना है, 11, ठीक है। दिस इज एन इंडेक्स, ये क्या है, ये इंडेक्स है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। आपको इसकी हेल्प चाहिए हो तो वी कैन शो द हेल्प आल्सो, a.insert and I will write here question mark and you can see the help here. See a.insert में क्या पास करना है हमें, इंडेक्स एंड द ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू इंसर्ट। इज इट विजिबल, ये विजिबल है आपको, यस सर विजिबल है, ठीक है। तो एक हमारी लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है। फर्स्ट हमने क्या चेक किया कि उसमें क्या क्या मेथड्स फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हमें इंसर्ट करना है, हमें नहीं पता इंसर्ट का क्या सिंटैक्स है, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका जुपिटर नोटबुक में काम करेगा, ये ऑल उसमें जो नोट पैड होता है ना उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। सो उसका आपको सिंटेक्स आ जाएगा, a.insert इंडेक्स। इंडेक्स में किस इंडेक्स में आपको इंसर्ट करना है एंड द थिंग दैट यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। सी अब देखिए मुझे मैंने लिखा है यहाँ पे 3,11, तो इंडेक्स 3 में 11 इंसर्ट करना है, ठीक है। इनिशियली देखिए, इनिशियली हमारा क्या था, 0 देन 1 देन 2, ठीक है। तो ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये तो सेकंड इंडेक्स है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लीज रिकॉल, इंडेक्स 0 से, ठीक है। तो थर्ड वाला एलिमेंट कहाँ पर आएगा, ये 2 के बाद, थर्ड में थर्ड इंडेक्स कहाँ पर आएगा, 2 के बाद। तो देखिए ये 2 के बाद 11 आ गया, यस और नो, फाइन, ठीक है। तो इसी तरह, हाँ इसी तरह से आप फिर पॉप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, आगे से पीछे, पीछे से, फिर आप सॉर्ट कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
ठीक है, अगर आपको फर्स्ट 0 से 99 नंबर तक लिस्ट चाहिए तो शॉर्टकट तरीका ये है, रेंज 100, सो 0 से स्टार्ट करेंगे 99 पे रुकेगा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट के अंदर लिस्ट। सी, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था, अभी तक हमने सिर्फ ऐसे किया था ना, L3 सपोज हमने ऐसे किया था 1 इस तरह से, और हमने इस तरह से भी किया था, ठीक है। यस और नो, यस और नो, प्लीज आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। देखो ये पूरी एक लिस्ट है, देखो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये पूरी एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में जो जीरोथ एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट, और आप फर्स्ट बोल सकते हैं अगर इंडेक्सिंग में 0 बोल रहा हूँ तो सपोज फर्स्ट बोल दिया, चलो ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट अगर आपका रोहित है, लास्ट एलिमेंट अग्रवाल है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट एक पूरी लिस्ट है, सेकंड एलिमेंट एक लिस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना हो देन व्हाट यू विल राइट, एस लिस्ट है तो आप एस ऑफ 0 फाइंड, एस ऑफ 0 लिखेंगे तो यू विल हैव आउटपुट रोहित, ठीक है। व्हेन यू विल राइट एस ऑफ 1 तो ये पूरा लिस्ट आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, so just asking. Archita is not responding. Archita, what is list inside list? Or you can say nested list. Students, those are unresponsive. I am noting down their name. ठीक है, so yeah, okay. ठीक, देखिए अभी हमारे पास क्या रहता है लिस्ट में, सॉरी लिस्ट में भी ऑलरेडी, मतलब लिस्ट में क्या थे, हमारे नंबर्स थे, हमारे न्यूमेरिक था और स्ट्रिंग थे, और न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का कलेक्शन था। देखो बिफोर दैट हमारे पास ये था ना, मार्क्स इज इक्वल्स टू 1,2,3, ये हमारे पास इस तरह से था, इसको हम L3 लिख देते हैं, L4 हमारे पास इस तरह से था, रोहित AK, बिफोर दैट वी हैव ओनली दिस, ठीक है। आइदर वो न्यूमेरिक होंगे और वो स्ट्रिंग होंगे, और इस तरह से थे, कलेक्शन ऑफ बोथ, ठीक है। 1, रोहित, 2, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। इसके पहले हमने ये किया था ना, ओनली आइदर ओनली न्यूमेरिक और ओनली स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक बोथ। बट हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग और न्यूमेरिक की जगह हम एक लिस्ट लिख रहे हैं। देखिए अब ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1,2,3, व्हाट इज दिस, ये लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट है। और ये पूरा क्या है, और ये पूरा क्या है, दिस होल थिंग इज अगेन अ लिस्ट, ये भी एक लिस्ट है। तो इस बड़ी वाली लिस्ट में, ठीक है, एक अंदर एक लिस्ट है, ठीक है, अंदर एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसके इंडिविजुअल अगर हमें एलिमेंट को चेक करना हो तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं लिखूंगा एस ऑफ 0, सेकंड एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट एक लिस्ट है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा एस ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए अब, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है आपको, दिस इज गिविंग रोहित, दिस इज गिविंग 1,2,3, पूरा लिस्ट विद ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं एस करूंगा एस, देन इट विल प्रिंट होल दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या कर दूंगा, a इक्वल्स टू एस ऑफ 1 कर दिया मैंने, तो एस ऑफ 1 में क्या था 1,2,3, तो हमारा a क्या आ जाएगा 1,2,3। फिर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो a में क्या है 1,2,3, इफ यू विल राइट a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सेम तरीके से देखो स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन भी होता है। कॉन्केटेनेशन जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज यहाँ पे आपके L3 और L4 हैं, मैं क्या करता हूँ, L6 इज इक्वल्स टू L3 प्लस L4,
आपको अगर डाउट है तो यहाँ पे पहले हम इनको अलग अलग प्रिंट कर लेते हैं, L3 L4, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इन दोनों को कॉन्किटिनेट करते हैं, L6। देखिए पहले में क्या था हमारा 1 2 3, सेकंड में क्या था रो ए के रोहित, सेकंड थर्ड में हमने क्या किया, दोनों को कॉन्किटिनेट किया। कॉन्किटिनेट में क्या होता है, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के लास्ट में आ जाएगा, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाले के लास्ट में अपेंड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉन्किटिनेशन। जैसे आपको याद होगा वी हैव डन स्ट्रिंग कॉन्किटिनेशन, याद है कि नहीं? यस सर। या सेम स्ट्रिंग सेम लिस्ट कॉन्किटिनेशन, मतलब कि सेकंड लिस्ट विल बी कॉन्किनेटेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट के आखिरी में सेकंड लिस्ट अपेंड हो जाएगी। क्लियर? फाइन, ठीक है। यस सर। Sir, ओके, हाँ Sir, ठीक, I have a question. हाँ Yes, बोलिए। sir. Can we use float literals also in the list? हाँ हाँ, हम फ्लोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कर देते हैं। ओके, सपोज मैं यहाँ पे L3 को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। L3 is equals to 1.2 3.4, we can use 2, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, अब देखिए आप, ओके मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था गलती से। देखिए फर्स्ट वाले L3 में क्या है 1.2 3.42, L4 में क्या है रो ए के रोहित, फिर हमने कॉन्किनेट किया तो फर्स्ट वाले के लास्ट में सेकंड वाला अपेंड हो गया। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वी कैन ऑल्सो यूज ट्रू फॉल्स, लेट मी चेक, आई थिंक ओके देखो हम ट्रू फॉल्स भी यूज कर सकते हैं, जो बूलियन हमने पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? फाइन। सर ट्रू Yes. फॉल्स कैसे मतलब ये हमने याद होगा ना, बूलियन लिटरल्स पढ़े थे, ट्रू फॉल्स। मतलब वो तो बेसिकली वो हो गया ना, प्रिंट आ जाता है, ट्रू प्रिंट हो जाएगा फिर वही लिस्ट के अंदर। हाँ लिस्ट के अंदर ये क्या है, एक देख, अरे प्रिंट L3, ये 0 1 2 3, तो मैं यहाँ करता हूँ L3, सॉरी 3। तो ये बता देगा ये इसका टाइप चेक कर लीजिए आप, अगर प्रॉब्लम है इसमें तो टाइप TYP टाइप L3 ऑफ 3 boolean बता दे लो। So we can have numeric, either integer or float, we can have boolean also, we can have string also, ठीक है। फाइन, हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक। और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं, देखो इनटू भी कर सकते हैं, इनटू करेंगे तो जैसे स्ट्रिंग में होता था ना, स्ट्रिंग इनटू 2 किया तो 2 बार स्ट्रिंग आ जाती थी आपकी। तो इसी तरह से अगर हम किसी लिस्ट में अगर इनटू 2 करेंगे तो 2 बार लिस्ट हो जाएगी, वो 3 करेंगे तो 3 बार। देखिए एग्जाम्पल, सपोज इसको भी रन करा ही देते हैं, ठीक है। सपोज P इज लिस्ट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, मैंने P इंटू 3 किया तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, कॉन्किटिनेशन, दोनों लिस्ट को ऐड करना, ठीक है। किसी यहाँ एक पर्टिकुलर रेंज में एलिमेंट को फाइंड करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, जैसे हम 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया तो 6th एलिमेंट आ जाएगा। अगर हमें पर्टिकुलर रेंज में एलिमेंट चाहिए, जैसे 3 से लेके 10 तक, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए आउटपुट, इसमें क्या है P ऑफ 3, 3 क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो थर्ड एलिमेंट जो P ऑफ 3 होगा वो ये वाला एलिमेंट होगा, दिख रहा है ना आपको फ्रेंड्स, हाईलाइटेड, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 7 पर स्टॉप करना है, तो ये 3 था, ये 4, ये 5, एक 6, ये 7। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। लिस्ट इज डन, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लैब है, लैब में हम फॉर लूप कंटिन्यू करेंगे एंड वाइल लूप, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम टपल, डिक्शनरी और सेट करेंगे, ठीक है। फिर आपका बेसिक थिंग्स हो जाएगा, फिर हम फंक्शंस,
ठीक है, Okay, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। ठीक है, थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यू कैन नॉट रिमेंबर, नो वन कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग कि अपेंड फंक्शन है, पोस्ट इंसर्ट है, पॉप है, रिवर्स है, सॉर्ट फंक्शन है, कॉन्केटेनेशन है। सो वी कांट रिमेंबर एक्चुअली, आई कांट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। डाउट है हाँ बोलिए। सर, ने पहले कहा था कि जिन बच्चों ने पाइथन ऑलरेडी सीख रखी है वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कर लें आगे के, तो सर आप वो हमें भिजवा दीजिए प्लीज। ओके, मैं आपको क्या करता हूँ, कल आपको मैं कुछ बोनस क्वेश्चन और एक प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, ठीक है, और मैं एक मेल ड्रॉप करता हूँ कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी पाइथन पढ़ चुके हैं दे प्लीज़ कांटेक्ट मी एंड आई विल डिसाइड 4-5 प्रोजेक्ट। सो आप लोग ग्रुप में प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके। तो कल मैं एक मेल ड्रॉप करता हूँ, और प्रोजेक्ट बट वो थोड़ा मतलब मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो, और मे बी मुझे भी उसमें लर्न करना होगा, ठीक है। सो वी विल डू टुगेदर, ठीक है। सर मैंने मैं कोई WhatsApp भी पे एक आपको उससे रिलेटेड मैसेज डाला। ओके हाँ सर। मैं ठीक है, मैं एक्चुअली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दूंगा कि जो मुझे भी आती हो और आपको भी आती हो। प्रोजेक्ट मतलब होता है कि हमारे लिए भी नया, आपके लिए भी नया। मैं अपना कोई इनबिल्ट प्रोजेक्ट नहीं दूंगा कि जो मुझे आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वी विल बोथ लर्न, ठीक है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सो आप भी सीखेंगे एंड आई विल आल्सो लर्न, ऑलवेज वी नीड टू लर्न, ठीक है। सर इट मीन मॉड्यूल्स की बात कर रहे हो? मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में समझा नहीं। मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स आता है शायद, मॉड्यूल नहीं, रिलेटेड नहीं है मतलब। मैं मशीन लर्निंग जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि ऐसे मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट है, पाइथन का। पाइथन का नहीं है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पाइथन तो एक लैंग्वेज है, पाइथन इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन एक लैंग्वेज है। आप मशीन, अगर पाइथन नहीं आती आप किसी और लैंग्वेज में कीजिए प्रोजेक्ट। पाइथन एक लैंग्वेज है, और मशीन लर्निंग एक अलग डोमेन है, अलग सब्जेक्ट है, यू कैन से अ वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आपका कंप्यूटर विजन भी आएगा, डेटा साइंस भी लिंक रहता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। सर ये जो भी हम बनाएंगे ये हमारा आगे लगेगा ना, मतलब इवैल्यूएशन है ना इसका? हाँ, हर चीज़ का एवोल्यूशन होगा आपका, हर चीज़ का। इनफैक्ट जो आप लोग क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं उसका भी एवोल्यूशन होता है, जैसे कि अर्चिता तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो जो आप आप लोग को हर चीज़ भी का होता है, ठीक है। कनेक्ट हो गए इस टाइम। हाँ, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है, ठीक है। कोड जिंजर पे भी एवोल्यूशन होगा, जो आपका एलएमएस पे है, उसका भी सर एवोल्यूशन कोड होगा। जिंजर का कोई अभी तक आपने कुछ भी बताया नहीं ना, कैसे करना हाँ, है मैंने उसे? आज लैब में स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। बस एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है कोड जिंजर। So okay friends, so we will okay, yeah, I think we should stop recording, and we will meet in our